Thank you, Arun Bhai, for joining us, and thank you, Karan and team, for organizing this. I think it takes volume and to organize such an event within 2 3 months. So if I still remember when you were talking about this event. So thank you for doing this for the industry. Arun Bhai, straight question, not further delay. First of all, people would definitely like to understand what you've been doing. How did you start your communication, journey, especially because I believe that you were in a corporate before this. How did this all career start for you? Uh, Thank you, Udit Bhai, and thank you so much for inviting me to this great event and in front of people who are very intellectual, communication experts. I don't have that much knowledge because I don't have any formal degree in communication, but over a period of time, I have learned it. So, uh, thank you to Karan also. And हम political लोग हैं, तो कुछ चीजें ऐसी भी हम आपको बता सकते हैं या बताएंगे कि जो जीवन के अंदर बहुत सारी जो बदलाव आते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स से, उसको हम कैसे सेट करते हैं या सेट करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे. ठीक है. So again, as you How I said, started, yeah. how did you start? Yeah. वो एक्चुअली क्या है ना, सोशल मीडिया का काम है, तो सोशल मीडिया के काम में क्या, माइक कभी कभी हाथ में आता है, बैक एंड का काम होता है, तो इसलिए थोड़ा नर्वस भी हूं मैं, क्योंकि माइक कभी कभी हाथ में आता है, तो कोशिश करूंगा कि कुछ आप लोगों से सीखूं और अपने बारे में भी बता पाऊं. तो या लाइक आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, एंड आई नेवर थॉट दैट आई वुड बी इन अ पॉलिटिकल पार्टी, because I am a first generation politician in my family. No one before me even knew a sarpanch of a village in my family. And I have the honor of meeting Honorable Prime Minister for almost 7 times, working with our Honorable Home Minister also, and with our previous Chief Minister of Haryana, Shri Manohar Lal Khattar ji, and the present CM Nayab Singh Saini ji. So it's a story, Udit ji. What happened was, like, I stay in Malibu town, which is in Gurgaon sector 47. So on a Sunday morning, I was just taking a walk, and my daughter was just born. She was, I think, 1 month old. And I was in my society. When I was walking, a voice came, Namaste ji. So I said, okay, Namaste. तो कह रहा, आप यहीं रहते हैं क्या? मैंने कहा, हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ. तो कह रहा, आप हमें चाय पिलाएंगे? मैंने कहा, चाय पियेंगे, पिलाएंगे आपको, आओ भैया हमारे घर आओ. तो चाय पिलाने से बात शुरू हुई. उन्होंने बताया अपने बारे में. तो आप सबने आरएसएस के बारे में सुना होगा, सबने सुना है आरएसएस के बारे में. तो वो आरएसएस के प्रचारक थे. तो प्रचारक जी से मेरा मिलना हुआ, उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई. तो धीरे धीरे करके मुझे पता भी नहीं चला मैं कैसे भारतीय जनता पार्टी में मेरा एक तरीके से मूव ऑन हो गया. और उस समय जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए थे, तो हमें एक्सेल वेक्सेल सब चलाना आता था. उस समय आईटी का जो काम है, सोशल मीडिया का काम है, वो पॉलिटिकल पार्टीज में धीरे धीरे आ रहा था. तो जो हमारा एक सिंपल टास्क होता है, वी लुकअप लगाना, सब एंट्री लेवल पे भी ये सब लोगों को आता है. उस समय पॉलिटिक्स में 2014 के अंदर वो ऐसा लगता था कि भाई साहब को सॉफ्टवेयर बना के दिखा दिया हमने, जबकि वो बहुत सिंपल सा काम है. तो वहां से वो जर्नी मेरी शुरू हुई, और आज मुझे like I am holding this position for almost now 8 years, have seen 3 general elections, 3 state elections, various these municipality elections, and it's my luck, or it's under the leadership of our great Prime Minister Narendra Modi ji that we are winning every elections. Thank you. The reason why I asked this because not a lot of people would be aware what you're doing. As you said, people behind the scenes, social media जो handle करते हैं उनको time नहीं मिलता है, to come out and talk about it. So that was the reason. And again, coming back to the social media because our panel, our discussion is on that. There's a lot of misconception which people have when it comes to political social media campaign. Do you want to, throw some light on this because especially you've been doing this for Haryana government in the last 80 years, as you said. Right. वो
पॉलिटिकल सोशल मीडिया की जो भी बात आती है तो लोग सोचते हैं कि भाई ये तो ट्रोल आर्मी है, ऐसे ही लोगों को हमारे बारे में मिसकंसेप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, पॉलिटिकल जो सोशल मीडिया होता है वो लास्ट व्यक्ति तक अपनी बात को, हमारी गवर्नमेंट की जो बहुत सारी स्कीम्स हैं उसको नीचे तक पहुंचाने का जो काम करता है वो हमारा पॉलिटिकल सोशल मीडिया करता है। इसका देखो सोशल मीडिया में क्या पावर है पॉलिटिकल, उसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के अंदर व्हेन वी फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट, सो आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस ऑल्सो 2014 तक भी बहुत सारे ऐसे गांव थे, बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी। तो फेसबुक पे जब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव हुआ तो 2016 की ये बात है, मेरे पास एक मैसेज आता है मेरे मैसेंजर के ऊपर कि भैया ऐसे ऐसे ये व्यक्ति है, इनकी शादी नहीं हो पा रही है। मैंने कहा भाई शादी नहीं हो पा रही तो मैं कोई मैरिज ब्यूरो तो है नहीं मेरा। तो उन्होंने कहा कि भैया इनके घर में ना इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं है, उसके कारण ना तो इनकी शादी हो पा रही है ना इनकी सिस्टर की शादी हो पा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कनेक्ट करता हूं। तो उस समय हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हुआ करते थे जो ये सारा काम देखते थे, तो उनके ओएसडी को मैं बहुत अच्छे से जानता था। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैंने कहा सर ये अभी ऐसे है कि इनके घर में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं है। तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक हमारा जो सरकार है उसका इलेक्ट्रॉनिक ये प्रोसेस चल रहा था कि हम सबको इलेक्ट्रीफाई कर रहे थे विलेजेस को। तो आप यकीन मानिए 6 मंथ्स के अंदर उस घर में इलेक्ट्रिसिटी है, उस विलेज में इलेक्ट्रिसिटी आई। और ये मेरा ऑनर है कि जब उनकी शादी हुई तो उनकी शादी में चीफ गेस्ट मैं बन के गया था। तो इतना जो सोशल मीडिया है उसका इम्पैक्ट है। तो पॉलिटिकल सोशल मीडिया इज नॉट अबाउट ट्रोलिंग, इट इज अबाउट गिविंग बेनिफिट्स टू ऑल द पीपल। और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं सही जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं उनके लिए भी मीडियम होता है। So it's not about trolling, right? So when you actually do social media, a lot of your data comes into picture, right? Because आप कोई भी campaign जब चलाते हो, there's a direct impact which you can see by looking at the data. So when you go to any campaign, right, your measurement of the campaigns also play an important role. Your data plays an important role. तो कोई भी social media अगर हमारे पास यहाँ पे सामने, we have somebody who does measurement day in and day out, Aseem, who talks about it, right? So we just want to understand more about how do you measure especially the political campaigns. One is, of course, direct relation to the win of a particular candidate. The other is, of course, आप कहाँ तक उस बात को लेके जा पा रहे हो is also one of the things. तो data कितना role play कर रहा है इस पूरे journey के अंदर in the last 8 years? See, data is very important and in other words, data is diamond. जिसके पास भी डेटा है वो विनर है। आज जितने भी बिग कंपनीज है, लाइक फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, चाहे हमारा सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वो सब किस चीज पे प्ले कर रहे हैं? वो सारा का सारा डेटा। तो डेटा तो एक तरीके से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये हमारी एडवांटेज है, ये लाइक खासकर हम जैसे लोगों की, कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत को लीड कर रहा है और हमारे पार्टी को वो लीड रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो जब वो किसी चीज में इन्वॉल्व होते तो डेटा वेटा हमारे लिए कोई ज्यादा मायने रखता नहीं है। और इसका एग्जाम्पल आपने बहुत सारे देखे होंगे, ऐसे ऐसे इलेक्शंस हम जीतते हैं जहां पे कोई व्यक्ति सोचता भी नहीं है कि हम इलेक्शन जीत सकते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेट वर्क विच ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज डूइंग। देखिए, डेटा से अगर रिलेट बात की जाए, हाँ, हम पिछले जैसे बूथ मैनेजमेंट, इफ यू नो व्हाट बूथ इज, तो बूथ जो होता है वो इलेक्शन का सबसे छोटा एक सेक्शन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर आप वोटिंग डालने जाते हैं तो उसको बूथ कहते हैं। कितने लोग वोट डालते हैं? पहले तो अगर थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी अगर मैं बनाऊं, ग्रेट टू नो, क्योंकि जब थोड़ा इंटेलेक्चुअल फोरम में हम जाते हैं तो यही दिखता है कि भाई एक्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन वोट डालने नहीं जाते हैं। अगर गुरुग्राम की ही मैं बात करूं, थोड़ा सा टॉपिक को लेके जा रहा हूं, ये हमारे लिए भी अच्छा है। बात की जाए
तो जब असेंबली इलेक्शन होता है तो गुरुग्राम का अगर हम लास्ट ईयर्स का वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो दैट इज अराउंड 49 to 50%। और सेम अगर म्युनिसिपैलिटी में जाएंगे, जब एमसीजी का इलेक्शन होता है तो वो जो परसेंटेज है वो और भी कम हो जाता है, वो सिर्फ 32% रह जाता है, 34% रह जाता है। और फिर हम एस्टैब्लिशमेंट को बोलते हैं कि भाई वाटर लॉगिंग हो गई है, फिर हम कहते हैं हमारा शहर गंदा है। ये सब हम कहते ही हैं, एक्स पे कहते हैं, इंस्टाग्राम है। देखो मैं पॉलिटिकल पार्टी का ही रिप्रेजेंटेटिव हूं और खुद भी एक बडिंग पॉलिटिशियन हूं। एक मैं साफ बात, क्योंकि मैं थोड़ा अपफ्रंट किस्म का व्यक्ति हूं, पॉलिटिशियन आपकी सिर्फ एक चीज से डरते हैं, नहीं तो वो नहीं डरते हैं। वो ना, आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कोई 10 करोड़ का मालिक होगा, 100 करोड़ का मालिक होगा, राइट, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ एक चीज से डरते हैं, वो है आपकी वोटिंग पावर। और अगर किसी सोसाइटी का क्योंकि डेटा की बात आ गई, तो डेटा तो हम ही पॉलिटिशियन, हमारे जो एमएलएज हैं, जो हमारे एमपीज हैं, इलेक्शन के टाइम में डेटा तो हम ही उनको देते हैं। तो मैंने देखा, फॉर एग्जांपल मालिबू टाउन की बात करें, मालिबू टाउन में 2014 में वोटिंग परसेंटेज बूथ की आ गई लेस देन 30% है। फॉर एग्जांपल मंगोलिया, जिसमें सो कॉल्ड और भी बहुत बड़े लोग रहते हैं, लेस देन 8% है। तो दे विल, व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद देम इज, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आपको वो सीरियसली लेते नहीं है। तो भाई मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जिस फोरम में हम यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग, अभी एसआईआर हो रहा है हरियाणा में, यहाँ पे हरियाणा के लोग कितने हैं जो हरियाणा के वोटर्स हैं? ठीक है, आप सबने अपना एसआईआर करवा लिया, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि देखिए वोटिंग पावर जो है, अब डेटा जो भाई ने बोला है कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं डेटा दूं किसी पॉलिटिशियन को कि भाई फॉर एग्जांपल पार्क व्यू की जो सोसाइटी है इसमें 80% लोग वोट करते हैं, तो पॉलिटिशियन आरडब्ल्यूए का जब मेंबर कोई भी उन्हें फोन करेगा ना, वो आपकी सर्विस पे अवेलेबल हर समय रहेंगे। तो ये तो मेरी गारंटी है, उस सोसाइटी में तो वाटर लॉगिंग नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि 80% वहां पे वोट कर रहे हैं। लेकिन अगर मंगोलिया में 7% है, 8% है, आप देखते हैं पॉलिटिशियन विलेजेस को बहुत महत्वपूर्ण बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमारे गुरुग्राम के अंदर अर्बन विलेजेस बहुत है। तो जो अर्बन विलेजेस है वहां पे जो वोटिंग परसेंटेज होती है वो 70% होती है, 75% होती है, 80% वोटिंग होती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो सोसाइटी कम वोट कर रहा है हम उसका टेक केयर नहीं करते हैं, करते हैं, और टाइम टू टाइम सब चीजें होती हैं। लेकिन अगर पावर बनना है, अगर पॉलिटिशियन को अपने साथ रखना है ना, तो वोटिंग की पावर आप लोगों को समझना पड़ेगा। और वोटिंग की पावर जो व्यक्ति समझ जाता है, उसकी सोसाइटी का भी भला होता है, उसका भी भला होता है, सब कुछ भला ही होता है उसका। तो नहीं, बिल्कुल। I think lot of our today when we talk about elections or when we talk about communication, right? To when you are approaching to people, जैसे आपने भी क्वेश्चन पूछा कितने लोग गुरुग्राम के हैं, कितने लोग हरियाणा से। One of your key, target audience, as I may say, is also Gen Zs, right? And if you actually see when you run campaigns, there is a lot of Gen Z who gets involved in those campaign and in those discussions, right? How do you see where, when you look at other so-called parties, who's also running campaign, right? What is your take when it comes to attracting the Gen Z crowd? Because that's very, very important, and we are the young nation for a reason, right? So how do you want to attract them, especially when it comes to the campaigns which you design on social media? right, see, as I told you, that's the biggest advantage is PM Modi and his policies for the country. तो जेनजी को अट्रैक्ट करना हमारे लिए बड़ा आसान भी हो जाता है। और जेनजी की जो स्कीम्स हैं, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, इतनी सारी जो स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट की है, उससे जेनजी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है। अब जैसे यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं, यू वुड बी शॉक टू बिलीव दैट 2014 से पहले इंडिया में एक भी यूनिकॉर्न नहीं था। एक भी यूनिकॉर्न इंडिया के अंदर 2014 से पहले नहीं था। और आज
उनकी जो संख्या है वो बढ़ के 14 से ज्यादा हो चुकी है. So that means Gen Z and youth believes in the policies of the government. और जो अब environment मिल गया है, अब तो गवर्नमेंट सिंपल ये कहती है, खासकर हरियाणा गवर्नमेंट, कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप हमारे पास लेके आइए, आपको सारा का सारा सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा. तो क्योंकि जेनजीज को एक तो स्पीड चाहिए होती है, जल्दी जल्दी करने का आदत होता है सब कुछ, और ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, और एक ट्रस्ट चाहिए होता है. वो तीनों की तीनों जो चीजें हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की हर पॉलिसी के अंदर यूथ को लेकर वो है, जिसके कारण आप ये देखेंगे आज गुड़गांव की अगर बात करें तो एक तरीके से स्टार्टअप कैपिटल देश का बन चुका है. हर कॉर्नर के अंदर, हमारे हर टेक पार्क के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स चल रहे हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू दी नेशन बिल्डिंग. ये प्रधानमंत्री जी की ही सोच है और उनकी पॉलिसीज का ही नतीजा है कि आज हम जॉब सीकर ना बन के जॉब गिवर्स बन रहे हैं, और इतने सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, इतने सारे यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, खुल रहे हैं. तो मेरा तो यही है जेनजीज को कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई भी आइडिया है तो गवर्नमेंट के डोर्स आपके लिए खुले हैं. यू आर मोस्ट वेलकम. प्रेजेंट द आइडिया, गेट द फंडिंग एंड गेट योरसेल्फ गोइंग, योर सिटी गोइंग, योर कंट्री गोइंग. Okay. Startups की बहुत बात कर रहे हैं हम. We're talking about corporate world, unicorns. One important issue in which everybody on the table is talking about today is AI. Yeah. Right? So, there are teams who are getting, more powerful by using AI. How is the government campaign going when it comes to AI? I know the ministers have been talking about AI as well, but how do we see, how do you see AI being an important role or playing a role in your campaigns which you're designing for the coming elections, wherever it happens? Right. See, AI over a period of a few years has become a very important tool. लेकिन मैं उसको अपना सर्वेंट ही मानता हूँ, क्योंकि AI जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कभी भी रिप्लेस कर ही नहीं सकता है. और सारे के सारे यहाँ पे क्रिएटिव लोग बैठे हैं, वो ह्यूमन क्रिएटिविटी को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा. AI को आप अपने सर्वेंट की तरह लीजिए, उससे जो कमांड देना है उससे सीखिए, या उससे नॉलेज लीजिए, उससे डेटा लीजिए, लेकिन वो कभी भी मेरी क्रिएटिविटी को, मेरी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाता. जैसे मान लो इंस्टाग्राम की बात कर लें या कोई फोटो जनरेशन की बात कर लें, एक ग्राफिक डिजाइनर के द्वारा बनाया हुआ पोस्टर और एक AI के द्वारा बनाया गया पोस्टर, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस इतना AI में नहीं होता है. और बहुत सिंपल बात है, देखो AI से किसी को भी कोई थ्रेटन फील करने की बात नहीं है, क्योंकि AI बनाया तो ह्यूमन बींग्स नहीं है. तो ये वही बात है कि जब कंप्यूटर्स किसी जमाने में आए तो लोग कहते थे नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी. गेम बड़ा सिंपल है, आपको अपनी अपस्किलिंग करते रहना है हर 2-4-5 साल में, चाहे आप एम्प्लॉय लेवल पे हो चाहे एम्प्लॉयर लेवल पे हो. अगर आप अपस्केलिंग करते रहेंगे, चाहे वो AI के टूल्स के माध्यम से हो. पहले मान लीजिए हम लैंग्वेजेस सीखते थे, जावा प्लस और बहुत सारी लैंग्वेजेस होती थी, जिसने भी सीखी उस समय वो रेलेवेंट रहा. आज जिसने AI सीख लिया वो भी रेलेवेंट है. आने वाले 2-3 साल में कुछ और आएगा तो आप उसमें अपस्किलिंग, अब जैसे मान लो फोन भी होता है हमारा, जब हम नया एप्पल का या सैमसंग का कोई भी फोन लेने जाते हैं, हर 3 महीने बाद उसमें सॉफ्टवेयर का अपडेट आ जाता है. तो ऐसे हमें भी अपने इंटेलिजेंस का, अपने ह्यूमन उसका अपस्केलिंग करते रहना है टू स्टे इन द मार्केट. तो AI जो है वो हमारा एक हेल्पिंग हैंड है, हमें उससे बहुत सारी चीजें का फायदा मिलता है टू प्लान समथिंग. बट जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी अपना वो नहीं लगाएंगे तो AI भी आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा. Okay, I can see the time's up, but I will do a quick rapid fire with you, okay, for a minute or two, and then I will open this for audience as well to ask question if they want to, right? So 5 straight questions. Instagram or X? Like I need to choose between. Between choose. इग्नोर तो दोनों को नहीं कर सकते. तो इट्स लाइक X फॉर नैरेटिव बिल्डिंग एंड Instagram फॉर चेकिंग जेनजी का भी क्या चल रहा है भाई, इमोशन उनका क्या है, ऐसा बोल सकते हैं. Reels or podcast? Reels like
रील अगर बिल्कुल चेक करना है कि भाई इस समय मार्केट में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है तो रील्स, और किसी चीज की डेप्थ में जाना है, सुनना है, तो उसके लिए हमारा नहीं पॉडकास्ट अरुण भाई, आप दोनों आंसर दे रहे हो, एक आंसर, एक चीज चूज करो। चलो अभी रील का ही जमाना है, गो विद दी। एआई और ह्यूमन क्रिएटिविटी, आई थिंक आपने पहले दिया है। वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऑब्वियसली ह्यूमन क्रिएटिविटी, क्योंकि एआई बनाया तो हमने ही है भाई। Okay, this is one political communicator you admire globally. Yeah, without doubt it's like Prime Minister Narendra Modi, because उनकी जो पावर है अक्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और हर एज ग्रुप के व्यक्ति से कनेक्ट करने की जो पावर है, तो मेरे को नहीं लगता कि मॉडर्न एरा में उनसे बढ़िया कोई कम्युनिकेटर है जिनको मैं एडमायर कर सकता हूँ। That's correct. 3 words that define successful political campaigns. I think it's trust and consistency and clear communication. Okay, the last question is one advice for young wanting to build a career in political consulting. See, one advice or I would say is कि भाई आप जो भी करें सच्चे मन से करें, और पॉलिटिक्स में अगर आना है तो गिवर के रूप में आए, क्योंकि यहाँ पे देना बहुत कुछ पड़ता है, जैसे आपका टाइम हो गया, आपका फैमिली का टाइम हो गया, बहुत सारी, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये तो पॉलिटिशियन है, ये है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल फिगर बनेंगे या पॉलिटिशियन बनेंगे, तो अगर आप उनका 24 आवर्स का जर्नी देखेंगे ना, जो एक दिन में होता है, तो आप सोच नहीं सकते कि उनके साथ क्या क्या होता है। उनको रात के 12 बजे भी कोई, मान लो वो सो रहा है बेचारा थकार के, रात के 1 बजे फोन आते हैं कि भाई साहब मुझे पकड़ लिया। भाई क्यों पकड़ लिया? कि भाई साहब वो मैं दारू पी रहा था। तो मैंने कहा यार अब मैं बताऊं उसमें क्या कर सकता हूँ, कोई पकड़ लिया। फिर सुबह 5 बजे फोन आ जाएगा, किस चीज का? कि भाई साहब वो पानी नहीं आ रहा। ठीक है भाई, पानी भी लाएंगे तुम्हारे। तो इतना टफ लाइफ होता है। तो जब भी आए तो नेशन के प्रति आप कुछ देने की इच्छा रखते हैं तो आप आइए। हमारा इसमें एक लाइन भी हम बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में जिसको आना है तो उसका एक ही बिलीव होना चाहिए कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उस भावना से आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। Absolutely. Thank you. Can I open this for the audience for 1 or 2 questions if they have? Anybody? Ladies and gentlemen, the floor is open for questions and answers now. Kindly ensure that your questions are pertaining to this conversation in particular. Simply raise your hands and I shall pass on a mic to you. तो जब आप कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट की सक्सेस को मेजर करने के लिए व्हाट इज दैट वन मेट्रिक दैट यू यूज, की वो क्या चीज होती है जो देख के आपको लगता है कि ये पोस्ट दूसरी पोस्ट से बेटर करा? आई थिंक द नंबर ऑफ कमेंट्स, क्योंकि लाइक तो बॉट से भी आ जाते हैं लेकिन कमेंट नहीं आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर जितना कमेंट होता है, क्योंकि वो तो आप खोल के भी देख सकते हैं कमेंट्स में कि ऑथेंटिक है या बॉट से है, लाइक्स का पता नहीं चलता है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी पोस्ट पे ज्यादा कमेंट्स हैं तो मेरे हिसाब से वो एक सक्सेसफुल पोस्ट है। थैंक यू। हाय अरुण जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से बताया हमें कि पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया कैसे यूज़ किया जाता है। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आई एम स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज आई फाउंड हिम स्पीकिंग इन हिंदी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आपने स्टार्टिंग No, you can. I understand English. नो बट आई थॉट दैट यू प्रेफर दैट। It's okay. Yeah, yeah. सो आपने शुरुआत में कहा था कि जनरल परसेप्शन जो सोशल मीडिया, पॉलिटिकल सोशल मीडिया से एसोसिएटेड है, वो है मैनेजिंग ट्रोल आर्मी। तो जब ऐसे बातें होती हैं तो आप उसको कैसे एड्रेस करते हैं? एंड इन रियल लाइफ हाउ डू यू रियली मैनेज दिस वास्ट फॉलोअर बेस दैट यू हैव एंड मेनी ऑफ देम आर नेगेटिवली एंगेज्ड, राइट, जिसको ट्रोल आर्मी कहा जाता है। तो एक्चुअल सिनेरियो क्या है, क्या आप शेयर कर पाएंगे उसके बारे में? जी सी देखो, जिसको ट्रोल करना है वो ट्रोल करेगा ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं उसको कितना भी समझाने की कोशिश करूं। तो मेरा तो बहुत सिंपल रहता है कि अवॉइड नेगेटिव पीपल। इससे बढ़िया तो मैं 5 और नए लोगों को अपनी चीज बताने की कोशिश करूंगा, नए जो मेरे थोड़ी आइडियोलॉजिकली अलाइन हो, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन ट्रोल्स। तो मैं तो ये भी कहूंगा, आप भी अपनी कोई पोस्ट डालते हैं,
कोई भी पोस्ट डालेंगे तो 2-4 क्रांतिकारी तो होंगे ही जो आपको भी ट्रोल करेंगे, तो उनको ब्लॉक भी नहीं करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना जब अच्छा हवन चल रहा होता है भूत आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो ट्रोल्स को हमें अवॉइड ही करना है इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग आवर वैल्यूएबल एनर्जी ऑन देम। तो उनको अवॉइड ही करना चाहिए ट्रोल्स को। आप अपने काम को दिखाइए, बेस्ट वे में दिखाइए। हाँ, कई बार बहुत सारे ट्रोलर्स के अगर आप कमेंट पढ़ेंगे भी, वैसे तो पढ़ने नहीं चाहिए, उससे हमारा ही दिमाग खराब होता है, लेकिन अगर आप पढ़ते भी हैं तो कई बार तो वो भी हमें बहुत अच्छी एडवाइस नेगेटिवली दे जाते हैं, जिससे हम अपने आगे वाले कैंपेन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ट्रोल्स को करना चाहिए हैंडल। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जस्ट अ फॉलो अप थिंग ऑन दैट, my question was more related to the perception that exists that the BJP digital team cultivates these trolls. So ऐसा है क्या आप लोग यूज करते हैं या I mean it is just a wrong perception? No, it's completely wrong. हम कोई ना तो किसी ट्रोल्स को सपोर्ट करते हैं और ना ही कोई उनको कल्टीवेट करते हैं। वो क्या है ना कि आजकल लाइफ में भी नेगेटिविटी बड़ी अट्रैक्ट करती है। अब मान लीजिए कोई मैं रील बनाऊंगा कि मोदी गवर्नमेंट ने, जैसे आज एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुआ है हरियाणा से कि हाइड्रोजन ट्रेन, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए India's first hydrogen train was launched today by Prime Minister Narendra Modi, and that too from Haryana, Jeend. It has happened today. Wow. तो ये हमारे लिए एक हिस्टोरिक है, हरियाणा के लिए भी हिस्टोरिक है। This is not a question on Haryana government. Can you hear me? Can you hear me now? Yeah. Okay. So, English, my Hindi is not great. So, what level of encryption do tools like WhatsApp have now? Because there's a lot of questions amongst in people's minds. Not a lot of people articulate it, but in a climate where there's surveillance and trolling, as we were talking about, and many cyber crimes. So it's important to know, are our messages truly encrypted? Do lawmakers have access whenever they want? Do they dip into data servers? And so this is, I think, a very important question on general digital climate. No, absolutely, I agree with it. But see, you talked about WhatsApp or any platform. So first of all, what kind of encryption do they have? So I don't know, because I am not a spokesperson of WhatsApp. I don't know about their policies. But yes, in my view, this is my personal view, कि whenever you are entering a digital world, like you open your Gmail account for the first time, right? So I think nothing is private. Like if on a Facebook, I watch a watch ad, after half an hour, I can only see watch ads. And people will call me from Kapoor Watches and say, sir, आपने ये watch दिया। मैंने भाई तेरे को कैसे पता चल गया? So it is like that. So if we are living in digital world, so I don't know what should I say, but I don't think there is some privacy or something. ठीक है, वो अपने करते होंगे जो भी encryption उन्हें करना है at their level. But अगर digital में हो, मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि गूगल वालों को ये भी पता है कि मैंने अभी आधे घंटे पहले अपना क्रेडिट कार्ड कहाँ स्पेंड किया है, क्योंकि स्टेटमेंट तो उसमें ही आता है। क्योंकि नेक्स्ट मंथ से या उसी दिन से मेरे पास वही ऐड आते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आपने भी बताया था डेटा, तो ये सब डेटा का गेम है। तो क्या प्राइवेट, अगर भाई बिल्कुल ही प्राइवेट रहना है तो मेरे को हिसाब से फिर डिजिटल वर्ल्ड से दूर रहना पड़ेगा। नहीं तो वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट योरसेल्फ कि व्हाट यू पोस्ट, what you see, what kind of messages you type on your WhatsApp or something. और आजकल तो बहुत सारी ऐसी भी एप्स हैं जो काफ़ी प्राइवेट है। और मैं तो कह रहा हूँ कि डिजिटल, ठीक है, हम सारे यहाँ पे डिजिटल लोग बैठे हैं। पहले ज़माने में ये सब कुछ नहीं होता था, क्योंकि हम आपस में मिल के बात करते थे, तो सब कुछ ही प्राइवेट रहता था। तो लोगों से मिला भी कीजिए, सारा व्हाट्सएप पे ही नहीं करना है। So, ma'am, your concern was very valid, but
this is my personal opinion that if I am in a digital world, I have a Facebook account, I have an Instagram account, I have a Gmail account. I don't think so कि everything is private there. ये मेरा sorry. Absolutely, absolutely, yes. Correct. Okay, thank you, Arun Bhai, for sparing time. And I think this conversation was, make sense to people. Whatever best we could do in the limited time frame. Thank you so much. Thank you. And thank you, all of you, to listening to this conversation. Thank you.